Hi guys. Okay, so we are talking to Ayush today. So yeah, let's wait till he joins us. Let's give him a moment. Hi guys. We're waiting for Ayush to join us. Hi Gaurav. We're waiting for Ayush to join us. Hi. We were waiting for Ayush to join us. Just give me one more moment. Uh, Thanks Gaurav. Same here. How are you doing, brother? Thank you. Hi Devarshi. What's up, buddy? Okay, Ayush is here. Cool. Ayush. Hi Ayush. Hi Yogen bhai. Hi Hi, how are Yogen bhai, you? how are you? I'm good, buddy. How are I'm you? good. I'm good too. Yeah, okay. Ayush, just tell us briefly which city are you from? I'm from Kolkata. From Kolkata. How long have you lived in Yeah. Kolkata? I've been born and brought up in Kolkata. I'm 30 years old. 30 years old now. Yeah. Yeah, okay, fine. And you had some curiosities about one of your friends who has ankylosing spondylitis. Someone in your family you Yeah. said has ankylosing spondylitis and you wanted to talk about Hmm. that. Yeah. Yeah, okay. So what do you know about ankylosing spondylitis? Have you done any research? Do you know anything about it? Yeah. Actually, he is like ankylosing spondylitis. The pain started from his legs and then from at the back and neck, and slowly every joints were affected. All joints are affected now. Yeah. Yeah, okay. And Like in ankylosing spondylitis. yeah, what is the meaning of ankylosing spondylitis? Do you know any research into that? Yeah, that the bones get fused in the future, Hmm. and inflammation is there in at every joints, and it is very difficult to diagnose as well, this Yes, disease. correct. And Hmm. do you know if they have if your friend has HLA-B27 positive? Yeah, right. It is okay. Yeah. So, and why does this disease happen? Do you know why does ankylosing spondylitis happen? Doctors say that it is genetic. Genetic, okay. Yeah. But you know that everyone who has HLA-B27 gene positive does not have Hmm. ankylosing spondylitis. Yeah. Yeah, so then what is That has the been said. trigger? Let's say the genes are the underlying factor, but what is the trigger Hmm. factor? Trigger maybe the wrong food, wrong diet, wrong lifestyle. Absolutely, yes. And Yeah. do you know how they are connected, lifestyle and spondylitis? That like they see lifestyle and wrong diet, that is the main cause for every disease that I But have how? How is researched it, for. like, let's say, how is bad diet connected to ankylosing spondylitis, or how is less exercise connected to ankylosing spondylitis? The food that we eat, the cooked food, Hmm. that does not get digested, Hmm. and ultimately we are having cooked food like for 4 to 5 times a day. Yes. That's our general lifestyle, Yes. and that does not get digested, and ultimately that becomes toxins in our body, Hmm. Hmm. and that affects our joints or maybe any part of the body. Hmm. The body is imbalanced, and Yes. that's the reason for every disease nowadays. Yes, I'll give you, yes, you are perfectly right. I'll give you like a Hmm. little more zoom in version of this thing. Yeah. Hmm. Okay, so first of all, ankylosing means hardening or stiffening or Yeah. becoming more rigid. So because Hmm. your joints are stiffening over time, and you know in the spinal cord gradually they call it bamboo spine. So Yeah. जिसमें सारा वर्टेब्रे जो होता है वो सारा फ्यूज हो जाता है और सारा पूरा फ्यूज हो जाता है. स्पाइनल कॉर्ड एक बैम्बू जैसा बन जाता है.
सो जो चीज धीरे धीरे हार्ड होती है ना उसको एनकलॉजिंग बोलते हैं. सो एनकलॉजिंग सिंपली मीन्स कि वो टाइम के साथ फ्लेक्सिबल नहीं हो रहा है, वो टाइम के साथ रिजिड होते जा रहा है. या राइट. एंड स्पॉन्डिलाइटिस, सो स्पॉन्ड इज द स्पाइन एंड आइटिस मतलब स्वेलिंग, बेसिकली इन्फ्लेमेशन जो आप बोलते हो, स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन. सो आपके स्पाइन में ऐसा स्वेलिंग है सॉरी जिसके कारण आपका जॉइंट्स और स्टिफ होते जा रहे हैं, तो उसको एंकलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, सिंपल. या ट्रू. नाउ स्पाइन में इन्फ्लेमेशन कैसे आया? सो यू आर एब्सोल्युटली राइट दैट व्हाट हैपेंस इज different kind of bacteria are needed to digest different kinds of food that we eat. So let's say कि अभी आप वेजिटेरियन हो और अगर आप नॉनवेज हो जाते हो तो 3 ही दिन में आपके जो गट का जो बैक्टीरिया है उसको गट बायोम बोलते हैं, BIOME. ओके. And it's called a biome because it's an entire ecosystem. So बहुत सारे अंदर अलग अलग बैक्टीरिया रहते हैं, मिलके काम करते हैं. So these bacteria they come according to the diet you have. आपका जो भी डाइट होगा उस हिसाब से वो बैक्टीरिया आ जाएगा. ओके. Yeah. Now what happens is that some bacteria when they break food they produce different kinds of acids like sulfuric acid or hydrochloric acid etc etc. ओके. सो ये जो एसिड्स होते हैं वो जो हमारा गट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन को अंदर से वो एसिड के कारण इन्फ्लेमेशन होने लगता है गट में अंदर, और फिर धीरे धीरे वो गट की जो पूरी दीवारें हैं वो पूरी सूज जाती है इन्फ्लेमेशन से. और उससे क्या होता है कि गट के बाहर जो हमारा कचरा होता है, बाइल जिसको बोलते हैं, BILE बाइल, वो अंदर जाने लगता है. और जैसे ही बाइल जाता है अंदर तो तुरंत हमारा इम्यून सिस्टम एकदम नेक्स्ट लेवल पे एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो पेट से कंट्रोल होता है. और आपका जो रेड ब्लड सेल्स है, क्योंकि इम्यून सिस्टम मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, सो व्हाइट ब्लड सेल्स आर द इम्यून सिस्टम. और आपके जो रेड ब्लड सेल्स है वो आपके बोन मैरो में से बन रहे हैं, और वो जो आपके बोन मैरो है वो आपके जॉइंट्स में है. सो ऑटो इम्यून मतलब सेल्फ इम्यून, मतलब आपका इम्यून सिस्टम अब एक नेक्स्ट लेवल पे एक्टिवेट हो गया है और वो आपके बॉडी को ही अटैक कर रहा है, स्पेशली आपके रेड ब्लड सेल्स को. और रेड ब्लड सेल्स जहां पे बनते हैं वहां पे कॉन्स्टेंटली आपके बॉडी का व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स उनका फाइट चलते रहता है. और वो फाइट के कारण उस जॉइंट पे आपको इन्फ्लेमेशन आने लगता है, क्योंकि वहां पे कॉन्स्टेंटली घिस रहा है. सो वो घिसते वो सूजने लगता है. सो अनफॉर्चुनेटली आपके केस में, मेरे केस में हुआ है, मतलब जो आपके रिलेटिव है उनके केस में, या जो भी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स हैं, या जो भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, कोई भी हो, उनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, चाहे माइलाइटिस हो, चाहे आयराइटिस हो, यूवाइटिस हो, कोई भी. सो बेसिकली जिसको भी कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है उसके बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके ही खिलाफ काम करना शुरू हो गया है. अब वो चीज कभी क्योर नहीं होने वाली, वो कभी क्योर नहीं होने वाली. मेरा भी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कभी क्योर नहीं होगा, क्योंकि मेरे मरते दम तक मेरे ब्लड टेस्ट में वो HLA-B27 जीन तो दिखाएगा ही, और मेरे मरते दम तक मेरा जो स्पाइन में थोड़ा बहुत हर्निएशन पहले हो चुका है वो तो दिखाएगा ही कि मेरा स्पाइन का जो लोअर वर्टिब्रे है वो थोड़ा बहुत फ्यूजिंग जैसा, हर्निएशन जैसा हो गया है. सो और डैमेज भी अभी कभी ठीक नहीं होने वाला, और डिजीज कभी क्योर भी नहीं होने वाला. फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम थोड़ा कंफ्यूज हो चुका है परमानेंटली. सो नाउ ऑल वी कैन डू इज बेसिकली दैट हम हो सके उतना अपने गट का जो बायोम है उसको हेल्दी रखे, एक्टिव रखे, ताकि इन्फ्लेमेशन नहीं हो. और इन्फ्लेमेशन पेट में नहीं होगा तो वो सिस्टम और ज्यादा अग्रेसिव नहीं बनेगी. सिंपल एज दैट. So this is how the entire thing is connected, that your gut starts getting inflamed and वो बहुत सालों तक inflamed रहने से आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है, जिसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर फिर बोलते हैं. या सो अभी क्या है कि अपने को इसको कैसे, मतलब इसको क्योर करना चाहिए? तो अब क्योर में सिंपल यही है कि एक तो हमें हाई फाइबर, हाई वैरायटी डाइट. सो हाई फाइबर मीनिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हाई वैरायटी मीनिंग सीजनल. सो आज सुबह से जैसे मैंने देखा जाए तो आज सुबह से मैंने 2 ऑरेंजेस खाए हैं, 1 एप्पल खाया है,
4 या 5 केले खाए हैं। फिर 4 या 5 मैंने वो खाए जामफल, अमरूद, गुआवा, ठीक है। गुआवा जो बोलते हैं। एंड गुआवा आर हाँ। वेरी रिच इन प्रोटीन। आप अभी गूगल करोगे ना प्रोटीन रिच फ्रूट, तो उसमें पहला ओके। नंबर गुआवा का आएगा, आवाकाडो का आएगा। ओके। तो अब आवाकाडो तो यहाँ पे बहुत महंगा पड़ता है, वो यहाँ तो मिलता नहीं मैक्सिकन है अपने। फ्रूट हाँ, है। हाँ। हाँ, हाँ, बट हाँ। जो जामफल है वो बहुत सस्ता है। हाँ, हाँ। तो आप जामफल खाओ। सो ये सारे फ्रूट्स हो गए, और फिर आप हो सके उतना वेजिटेबल्स खाओ। आप बैंगन खा सकते हो ओके। धोकर डायरेक्टली, ककड़ी धोकर खा सकते हो। हाँ, वो मैं आपका फिर वीडियो में देखा वो रहता है। चौड़ी जो आता है वो होता है। मतलब काफी सारे हाँ, हाँ। ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो आप, और सारे वेजिटेबल्स को कट भी नहीं करना है, जूस भी नहीं करना है, और पील भी नहीं करना है। पील नहीं हम्म। करना है क्योंकि उसका मैक्सिमम न्यूट्रिशन जो है वो उसके पील में ही है। कट नहीं ओके। करना है क्योंकि आप जितना उसको कट करेंगे उतना आपका च्यूइंग कम हो जाएगा। आप कटिंग करेंगे, बॉइलिंग करेंगे तो आपका च्यूइंग कम हो जाएगा। इफ यू आर नॉट हम्म। च्यूइंग दैट मीन्स कि आपका सैलिवेशन नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा सैलिवेशन है। नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है। सिंपल एज दैट। सही बात सो है। हाँ, हमको हाँ। उसको बिना काटे सीधा ककड़ी को लिया और खाने लगे, टिंडे को लिया और अच्छे से धोकर आप धोएंगे तो 70-80%, 90% तक पेस्टिसाइड सारे धुल जाएंगे। अगर उसको आप सिर्फ वाटर नमक से के अपने पानी धो से सकते धोते हैं। हो तो और अच्छा हो जाएगा। अगर आप वो सोडा से हाँ, धोते हो, बेकिंग सोडा से, तो और हाँ। अच्छे हाँ, से, मतलब तो 100%, ऑलमोस्ट 100% आपका पेस्टिसाइड्स उसमें से क्लीन हो क्लीन हो जाएगा। जाते हैं। तो ओके। बस बात खत्म हो गई। और फिर आप जितना चबाओगे उतना आपको सैलिवेशन होगा, तो डाइजेशन अच्छा होगा। और जितना हम्म। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होगा उतना फाइबर ज्यादा होगा। और फाइबर हम्म। से काफी फायदे होते हैं। एक तो जो फाइबर को हजम करने के लिए बैक्टीरिया चाहिए, वो बैक्टीरिया हम्म। उतना एसिड नहीं बनाते। सेकेंडली, ओके। उसमें से आपको जो फाइबर मिलता है वही फाइबर से गट का लाइनिंग बनता है। द गट लाइनिंग इज मेड यूजिंग सम काइंड्स ऑफ फाइबर ओनली, ओके। लाइक आई थिंक बिट्यूरेट इज वन ऑफ दोज। सो डायरेक्टली आपका गट स्ट्रांग होने लगेगा। एंड थर्ड फायदा ये है कि एक बार आपका गट पूरा उसका वॉल स्ट्रांग हो जाता है तो फाइबर हम्म। एक्चुअली ब्लड स्ट्रीम में भी जाने लगता है, और वो दिमाग तक, हार्ट तक, हर जगह पहुंचता है। और उसका ऐसा माना जाता है कि फाइबर का रोल आपके मूड में, आपके जनरल ओवरऑल हेल्थ में, आपके स्टेमिना में, सब में है कनेक्शन। सो आपको फाइबर डाइट बड़ा रखना है। पीने में आपको ठंडी चीजें अवॉइड करनी है। आपका बॉडी जितना ठंडा रहेगा उतना आपको दर्द ज्यादा देगा। सो आप हम्म। मतलब आप पूछ सकते हो कि जिन लोग को एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, आपको बताएंगे कि वो लोग को गर्म शावर से काफी अच्छा फील होता है। कि हाँ, गर्म शावर लेते वो हैं ना तो बोलते तुरंत हैं। अच्छा फील। तो मतलब आपको बॉडी गर्म रखना है। आप जितना एक्सरसाइज हम्म। करेंगे उतना आपको छोटा मोटा चोट लगने का, जैसे कि वो सीढ़ी से अपन फिसल गए, या यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाँ, से, जो छोटे मोटे स्प्रेन्स होते हैं ये वो स्ट्रेंस सब होते हैं वो नहीं नहीं आएगा। होगा। हाँ, तो आपका बेड रेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि बेड रेस्ट आएगा तो पेन बढ़ेगा। जितना हम्म। बैठेंगे उतना पेन बढ़ेगा। तो यू हैव टू अवॉइड सिटिंग ऑल्सो, कि उनको बताना कि हो सके तो हर 10-15 मिनट पे, 20 मिनट पे खड़े होके 1 मिनट सिर्फ रूम में चल ले। बट यू नो अवॉइड सिटिंग फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम। बट इसमें जब डेफिनेटली पेन नॉट होता मोर है, देन। हाँ, पेन जब होता है तब तो फिर चलना इज नॉट ऑफ पॉसिबल। कोर्स, आज जब एग्जैक्टली। हाँ। सो एग्जैक्टली, सो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट जब पेन नहीं होता है तब हम्म। आपको सबसे ज्यादा वॉकिंग वगैरह, साइकिलिंग, स्विमिंग, आप जो कर सकते हो, थोड़ा बहुत योगा, डीप ब्रीदिंग से भी हम्म। लंग्स वगैरह, स्पाइन वगैरह मतलब स्ट्रेच होगा, और हम्म। अंदर गर्मी फील होगी। तो गर्मी फील होगी ना तो अंदर से एक मसाज जैसा फीलिंग आएगा पूरे हाँ। स्पाइन में वगैरह में। तो वो बॉडी को जितना गर्म रखा उतना फायदा हाँ, होगा। प्लस एंकलोजिंग हाँ। हाँ, स्पॉन्डिलाइटिस में ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। हाँ। एंकलोजिंग हाँ। स्पॉन्डिलाइटिस में पैरालिसिस वगैरह भी एक्सट्रीम केसेस में हो सकते हैं। हम्म। फिर यू नो एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन इज अ वेरी कॉमन एसोसिएटेड डिसऑर्डर विथ एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। सो राइट। ये सब चीजों में तो क्लियरली आपको योगा और एक्सरसाइज से फायदा होता ही है। जो लोग को भी डिप्रेशन वगैरह, या यू नो कई बार आप होता है ना कि आपके जैसे मतलब कोई अगर मूवी देखने गए और मूवी में बैठे हैं और फिर अचानक इंटरवल में खड़ा होने गए और खड़ा नहीं हो पा रहे अचानक ही, हाँ, तो हाँ। हाँ, हाँ। आपका लाइफ पे से थोड़ा बहुत विश्वास उठने लगता है कि यार मेरे लिए कुछ है ही नहीं, मैं कुछ एंजॉय नहीं कर सकता। मैं पार्टी हाँ, में गया और वही मैंने अगर डिप्रेशन। ज्यादा थम्स अप पी ली तो नेक्स्ट दिन मैं हाँ, सुबह उठ नहीं पाऊंगा। हाँ। हाँ, हाँ। सो एक डिप्रेशन एक तरह से, फीलिंग आता है हाँ, तो डिप्रेशन वाला। दैट कैन स्टार्ट लीडिंग टू डिप्रेशन, वेर वी स्टार्ट फीलिंग हम्म। दैट यू नो हमारे लिए लाइफ और हैप्पीनेस है ही नहीं हमारे लिए, सोसाइटी। लिमिटेड हो गया है पूरा और लाइफ। कितने बताएंगे, आपका कजिन भी आपको कितनी बार बताएगा कि मुझे पेन हो रहा है, पेन हो हम्म। रहा है, क्योंकि कोई हाँ, सुन के हाँ। भी पक जाता है कई बार। सुनने क्यों बैठा नहीं है। हाँ। हाँ, हाँ, तो इसलिए फिर हमको ऐसा मन भी नहीं करता कि मैं अभी कितने लोगों को बताता फिरूंगा यार मुझे पेन है, मुझे पेन है, तो इसलिए फिर मैं बोलना ही छोड़ दूंगा। सही बात है।
सो दीज थिंग्स हैपन, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी बॉडी में थोड़ा बहुत भी अगर मूवमेंट फील हो रहा है तो आपको फोर्स करना पड़ेगा खुद को कि मतलब वॉक करने के लिए वो जाए या साइकिलिंग करे, या मतलब फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल है। फैमिली आपको उनको पुश करना है कि आप अभी आप चल पा रहे हो तो प्लीज थोड़ा चल लो, अगर चल के अच्छा लग रहा है तो थोड़ा और बाहर चलने चले जाओ, आधा घंटा हो रहा है तो 40 मिनट कर लो। बट जितना सही बात मूवमेंट है। करेंगे, और आपको भी पता है कि मतलब उनको जो भी पेन हो रहा है वो पहले 5-10 मिनट में होता है, एक बार अगर चलने लगे तो 5-10 मिनट के बाद वो पेन धीरे धीरे कम होने लगता है एक्चुअली। सो इट्स जस्ट अबाउट क्रॉसिंग दैट 5 to 10 मिनट साइकोलॉजिकल जो एक बैरियर होता है, पेन का भी बैरियर होता है, हाँ, उसको थोड़ा क्रॉस करना पड़ता है। आपका आप जब क्योरिंग स्टेज में थे तो आप हम्म। कैसा डाइट उस समय फॉलो कर रहे थे? जब एकदम आपका एक्सट्रीम था, मैं जो आपका वीडियोस देखा हूँ पहले, जब आपको मतलब आप जब क्योर कर रहे थे इसको, जब फाइट कर रहे थे इसको, तो उस समय आपका डाइट एंड क्या आपका फॉलो कर रहे थे? मेरा डाइट दोस्त, मेरा डाइट वाज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हाँ, नट्स एंड सीड्स। और जैसे अभी आप भी अभी कर नट्स रहे एंड हो, सीड्स तो है ही, लेकिन अभी मैं नट्स एंड सीड्स और कम करते जा रहा हूँ। ड्राई बंद फ्रूट्स कर, है, हाँ, नट्स है, सीड्स है। आप 2-3 दिन पहले मेरा वीडियो देखोगे ना, तो उसमें सारे वो आइटम्स भी मैंने दिखाए इंडिविजुअली कि क्या क्या है। हाँ, 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 पॉपी हाँ, हाँ, मैं सीड्स देखा भी था, है, तिल भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, 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 सो दैट वाज माय डाइट, काइंड ऑफ वेरी एनर्जेटिक फील होता है, क्योंकि उस डाइट से मेन क्या होता है कि आप खाना खाकर तुरंत ऑलमोस्ट 10-15 मिनट के अंदर आप एक्सरसाइज कर सकते हो। कर सकते हो, हाँ, Whereas if you are eating your meat, or if you are eating your dal, roti, chawal and all that, so you know that you तो उसमें immediately तो feel like you टू have to आर, lie down। हाँ, 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 और वो खा के अगर आप मतलब बाहर भी गए अगर धूप में वगैरह में, तो आपको तुरंत तबीयत आपकी खराब हो ही जाएगी, डायरिया वगैरह, पेट खराब हो जाएगा। बल्कि हाँ, हाँ, ये जो फ्रूट है, वेजिटेबल्स, उसमें सबसे ज्यादा पानी होता है, सो आपको काफी एक्टिव फील कराता है, तो जिससे स्विमिंग करना, साइकिलिंग करना, वॉकिंग करना इजी हो जाता है। इजी हो जाता है। हाँ, जितना तो वेट कम बेसिकली होगा आप उतना उसमें, अच्छा फील होगा। हाँ, उसका तो वेट काफ़ी कम हो गया है, मतलब हाँ, वेट उसका मेरा भी 20 वेट केजी बहुत वो लॉस लूज हुआ है, और करना। मेरे सब मतलब होता क्या है कि पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स मुझसे मोटे हैं, तो उनको तो मैं दुबला ही लगूंगा। फिर मेरे हाँ, सारे फ्रेंड्स मुझसे मोटे हैं, सो मेरे पेरेंट्स को मैं दुबला लगूंगा। मेरे सारे हाँ, कजिन्स हाँ, मुझसे मोटे, सो ओके, ऑब्वियसली इन सबको देखेंगे तो मेरे पेरेंट्स को तो ऐसे लगेगा कि ये बहुत दुबला हो गया, मैं बहुत दुबला हो हाँ, गया। हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो पहले मैं चल नहीं पाता था, अब मैं 1 घंटा आराम से दौड़ सकता हूँ। दौड़ सो सकते हो, अगर मैं 1 घंटा भाग सकता हूँ, मेरे लिए और कुछ मैटर ही नहीं करता, मेरे को वो पेन नहीं चाहिए, स्टैमिना मेरा है भले ही बॉडी पूरा में। वेट चला जाए, मैं कैसा भी दिखूं, मैं हैंगर जैसा भी दिखूं ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा स्टैमिना एकदम स्टैमिना है, टॉप लेवल पे है। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि शायद मैराथन वैराथन भागूं या ऐसा कुछ करूं। हाँ, हाँ, सो अगर हाँ, मैं मैराथन भागता हूँ, दैट विल बी 42 किलोमीटर्स। सो 42 किलोमीटर मतलब 5-6-7 घंटे जितना नॉन स्टॉप भागना होता है, तो नॉन अगर मैं स्टॉप वो कर भागना, सकता हाँ, हूँ, मतलब दैट्स इट, मतलब और क्या फर्क पड़ता है, अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं, सही बात है। तो इसमें क्या है कि अभी मतलब वो सब क्या है कि एलोपैथी ट्रीटमेंट भी कर लिया, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी कर लिया, सब कर लिया, बट क्या है कि अभी रॉ डाइट कर रहा है हम्म। 2.5 मंथ से, बट हम्म। प्रॉपरली पूरा का पूरा क्योर नहीं हुआ। हाँ। मैंने वो मेडिसिन क्या है कि मेडिसिन भी थोड़ा उसको पेन किलर्स लेना पड़ रहा है, हाँ। एंड पर अभी तक पूरा पेन गया नहीं। रॉ डाइट भी ऐसा नहीं जैसे आप जो बोल रहे हैं वैसा रॉ डाइट नहीं किया वो हाँ, जैसे कि आपका कट करके ही वेजिटेबल्स खाता है, बट कुक्ड फूड बंद कर दिया है पूरा। ठीक है। हाँ, तो उनको कुक्ड बोलो फूड हो सके एकदम उतना बड़े टू पीसेस करे या पीसेस ना करे, वो तो इतना हाँ, डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, वो 2.5 मंथ से पूरा का पूरा रॉ डाइट पे है, हाँ। बट पूरा और का पूरा पेन एक्सरसाइज नहीं गया है। रेजिम क्या है, एक्सरसाइज शेड्यूल वगैरह क्या है? एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है क्योंकि पेन है काफ़ी, पर एंड मसल लॉस यार, पूरा हो गया है मतलब बॉडी स्टेप में। बाय स्टेप कर सकते हैं। व्हाट वी कैन डू इज दैट, मतलब अर्ली मॉर्निंग उठना पॉसिबल है? हाँ, अर्ली मॉर्निंग उठना पॉसिबल है, कितने बट बजे तक उठ एकदम क्या सकते हैं है अर्ली कि में अर्ली? उठने का उसका रूटीन जैसे अराउंड 8 बजे उठ जाता है। 8 बजे? अगर जल्दी उठना हो तो 5-1 बजे उठ सकते हैं, 6 बजे, 5 बजे? हाँ, हाँ, रूटीन चेंज करेगा तो 5-6 बजे उठ सकता है। है ना? हाँ, तो बस तो 6 बजे उठ के क्या करना है, फर्स्ट थिंग, इफ यू वांट यू कैन राइट दीज थिंग्स डाउन एंड यू कैन शेयर इट विथ हिम। आपको ओके, लिखना है तो लिख लो। नहीं वो मेरे को याद रहेगा, मैं बोल हाँ, दूंगा। ठीक है। ओके, सो द फर्स्ट थिंग यू डू इज व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, यू डाउन 1 लीटर ऑफ वाटर। ओके, 1 लीटर पानी पी जाना है, उससे आपका पेट हो सकता है उतना साफ हो जाएगा। हाँ, हाँ, इफ पॉसिबल उसके ऊपर 1 या 2 केला भी खा लो। ठीक है,
सो नाउ योर टमी इज लाइक, यू विल फील, मतलब उनको फील होगा एक्चुअली कि काफी एकदम लाइट हो गया और पेन बहुत ही रिलीव हो जाएगा, और जैसे ही पेट साफ होगा ना, रिलीव उनको फील होगा ही हमेशा. ओके. Then the second thing you start doing is थोड़ा बहुत breathing exercise, where what you do is कि you slowly breathe in. Slowly means so slowly कि वो सांस लेने की भी आवाज नहीं आनी चाहिए. ओके. Right? So you breathe in very slowly and you breathe out very slowly. That's all you have to do. ओके. If possible, try to focus कि जो हम सांस अंदर ले रहे हैं वो ठंडी होती है और जो सांस हम बाहर छोड़ रहे हैं वो गर्म होती है. बस इतना हो सकता है तो उस पर फोकस करो. 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट. 5 मिनट तक एकदम धीरे धीरे सांस अंदर लेनी, एकदम स्लो मोशन में, और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है. ये 5 मिनट करने के बाद आप YouTube पे देखना, एक होता है कपाल भाती. सो कपाल भाती, उसमें जोर जोर से वो पेट अंदर दबा दबा के नाक से छोड़ते हैं. वो सेकंड चीज अगर वो 5 मिनट कर पाए तो उससे उनको एक्चुअली पेट और पेट के आसपास के एरियाज में गरम गरम फील होगा, स्पाइन में बहुत अच्छा फील होगा, मसाज जैसा फील होगा. और वो करने के बाद तीसरा एक्सरसाइज है कि जोर जोर से सांस लेकर छोड़ना. लाइक ठीक है. ये जितना भी कर सके, ये अगर 5 मिनट कर लिया तो उनको एक्चुअली स्वेटिंग शुरू हो जाएगी. ओके. और इतना अगर आपको स्वेटिंग हो गया तो दैट मीन्स आपका बॉडी थोड़ा गर्म फील कर रहा है. इसके बाद आप चलने का ट्राई करना तो वॉकिंग हो जाएगा. ओके. हाँ, डेफिनेटली. अगर थोड़ा खाने का भूख लग रही है तो थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट वगैरह खा सकते हैं, काजू बादाम वगैरह खा के वॉक पे निकल जाने का. फिर जितना हो सकता है उतना वॉक करो, और वॉक से वापस आते ही इमीडिएटली डू सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, क्योंकि वॉकिंग करने से बॉडी वार्म अप हो जाता है. ओके. सो एक बार वार्म अप हो गया उसके बाद आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो. तो थोड़ा मोटा स्ट्रेचिंग, वो भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस या एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बिगिनर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस. तो उसी का आ जाएगा आपको. स्पेशली हैमस्ट्रिंग को आपको स्ट्रेच करना है. हैमस्ट्रिंग मतलब जो थाइज के वाले जो मसल्स होते हैं आसपास के, उनको हैमस्ट्रिंग बोलते हैं. तो हैमस्ट्रिंग जितना स्ट्रांग होगा उससे बैक को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि बैक जो डैमेज हो चुका है वो ऑलरेडी हो चुका है. हम उसको रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन उसके आसपास के जो एरियाज है उसको अगर हमने स्ट्रांग बनाया तो बैक को काफी सपोर्ट मिलेगा. सो इसलिए मैंने बताया ना, बैठना कम है. आप जितना बैठेंगे उतना आपके हैमस्ट्रिंग्स वीक हो जाएंगे. सो यू हैव टू ट्राई कि आप बैठो कम. हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेचेस, पेट का जो एब्स होते हैं, एब्डोमिनल मसल्स, उसको भी जितना स्ट्रांग करेंगे उतना बैक को सपोर्ट मिलेगा. एंड थर्ड थिंग इज चेस्ट, कि आप चेस्ट को जितना स्ट्रांग बनाएंगे उतना भी आपके बैक को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी. यू विल फील बेटर, यू नो, आपको वर्कआउट वगैरह करना आसान हो जाएगा क्योंकि आप ज्यादा अंदर हवा भर पा रहे हो. सो एनी एक्सरसाइजेस टू डू विथ योर लेग्स, हिप्स, एब्डोमेन एंड चेस्ट, ये सारे एक्सरसाइजेस उनको हेल्प करेंगे, सारे एक्सरसाइजेस. ओके. बट वो रूटीन आप ट्राई करके देखो. सुबह उठ के पानी एंड केला, एंड देन सेकेंडली जो 2-3 मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई वो उनको दिखाओ आप. हाँ, slow breathing in, breathing out, then that Kapalbhati, and third is deep breathe in, deep breathe out, जोर जोर से, नाक से. सारे नाक से ही करना है, मुंह से नहीं करना कोई. बस. और उसके बाद हो सके उतना वॉकिंग एंड देन सम स्ट्रेचिंग. ठीक है. एंड उसके बाद डाइट में क्या फॉलो करना है उसको? डाइट में तो जब भी भूख लगे तब हैव हाई फाइबर वेराइड डाइट, मतलब हो सके उतने अलग तरह के वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. जब भी जो भूख लगे तब खाओ. जब भूख लगे तब खाना है. हाँ हाँ. ऑब्वियसली अवॉइड ठंडी चीजें लाइक आइसक्रीम, कोको कोला, बियर अवॉइड. ऑब्वियसली अवॉइड स्मोकिंग वगैरह, क्योंकि स्मोकिंग से वो जॉइंट्स और ड्राई हो जाएंगे, बोन्स ज्यादा ड्राई हो जाएगा आपका. आंखों को ज्यादा नुकसान होगा. हाँ, स्मोकिंग से आंखों को भी नुकसान होता है, तो जो आंखों की कॉम्प्लिकेशन है वो बढ़ेगी. एंड ऑफ कोर्स अवॉइड थिंग्स विच हैव हॉट ऑयल इन देम, मतलब जो अपने तल के या व्हाटएवर जो पकाते हैं, तला हुआ, स्पेशली तला हुआ, इतना अवॉइड करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा इतने से भी. और खाने में रोटी और चावल कम और दाल और सब्जी ज्यादा. अगर पका हुआ खाना ही है तो रोटी और चावल बहुत ही एक ही लेने का या बहुत थोड़ा चम्मच लेने का, और दाल और सब्जी बहुत ज्यादा लेने का. और ट्राई करने का कि आप जब सब्जी पका रहे तो उसमें तेल एकदम नहीं के बराबर हो तो अच्छा है. ओके.
शुगर अवॉइड करना। फूड तो ले, हाँ, कुक्ड फूड सॉरी। एकदम ही प्रोसेस्ड फूड, कुक्ड फूड एंड प्रोसेस्ड फूड तो कुछ ले ही नहीं रहा है, वेरी गुड, सभी वेरी कुछ गुड। ऑफ हाँ, एकदम। आपको भी पता है सब रॉ शुगर से डाइट ले रहे बोन्स हैं वीक होंगे। बहुत। हाँ हाँ हाँ। ये सब, हाँ, कॉमन प्रॉब्लम्स है ये सब, या शुगर अगर कभी स्वीट टूथ होता है तो डेट्स ही खाता है, डेट्स खाता है या जागरी खा लेता है। कभी कभी कुछ भी चलेगा। देखो, एक बार हेल्थ हो हाँ गया, हाँ मेरी हेल्थ ठीक है, मैं कहीं शादी ब्याह में गया तो मैं तो 10-12 रसगुल्ले भी खा जाऊं। मुझे हाँ पता हाँ है ज्यादा से ज्यादा मुझे सुबह 10 मिनट स्टिफनेस होगी, मेरा जैसे ही ब्रीदिंग और वॉकिंग शुरू हुआ पेन गायब हो जाएगा। हाँ। सो बिकॉज आई नो एग्जैक्टली व्हाट इट इज। और प्लस डे टू डे बेसिस पे मेरा डाइट बहुत फाइबर वाला है। सो ओके। इसलिए कभी कभी कुछ भी खा लिया तो चल जाता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ हाँ हाँ। तो उसको मैं ये डाइट अभी फॉलो करने बोलूँगा। हाँ, फिर डाइट एंड उसके मैंने बाद बताया रिजल्ट। ना, एक्सरसाइज ट्राई करो। और पेट, वो सुबह पानी केले से ना पेट साफ होगा तो उनको हाँ काफी स्पाइन में पेन कम हो जाएगा। जैसे ही वो हाँ लोअर बैक पेन होता है ना उनको, हाँ हाँ हाँ, और लोअर उनको बैक भी पेन होता फील है। हुआ होगा कि जैसे ही वो टॉयलेट वगैरह जाते हैं और पेट साफ होता है तो एकदम हाँ, अच्छा रिलीफ फील होता है। सही सही, हाँ। हाँ हाँ, सो दैट इज द बेस्ट थिंग देन आयुष। हम्म। यही चीज़ था मेरे को पूछने का। तो श्योर। मैं देखता हूँ इसको, मैं उसको ये रेकमेंड करता हूँ। फिर आपसे, आपको मैं बताता हूँ फीडबैक कैसा आया है श्योर। इसका। हाँ डियर। एंड हाँ रीड, अपना खुद का रिसर्च करोगे ना उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो उनको भी बताना कि एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पे हो सकता है उतना रीड करे। और हाँ आज ही हाँ मैंने देखा कि एक पॉडकास्ट भी है। सो आप अगर हाँ गूगल हाँ। पे सर्च करेंगे एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पॉडकास्ट तो ओके। मिलेगा। उसमें एक आदमी ने अपनी पूरी लाइफ की जर्नी बताई। उसको 2 बार हिप रिप्लेसमेंट भी हो चुका है। उसको बार बार अच्छा। आंखों का भी प्रॉब्लम होता है। सो हाँ उसको हाँ। तो ऑलमोस्ट 30-40 साल से एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। अच्छा। हाँ, तो तो उसकी उन्होंने पूरी क्योर कर जर्नी उस पाया इसको? पॉडकास्ट में है। हाँ। अच्छा, वो पूरा क्योर कर लिए इसको, जो मतलब क्योर नहीं, सिम्टम्स नहीं, नहीं, जो नहीं, अपना। क्योर होगा ही नहीं। क्योर क्योर तो होगा वर्ड नहीं, भूल जाओ। सिम्टम्स को अपने, हाँ, कि अपने सिम्टम्स को दबा सकते हैं। नॉट रियली, मतलब उनका आप देखना, उनके केस में काफी डिजीज ज्यादा हो गया है। हाँ हाँ वो ठीक करने से ज्यादा ये बताते हैं कि मतलब इसको ओवरऑल मैनेज कैसे करें, कि इसमें क्या क्या हो सकता है। अगर आपको आंखों में दुख रहा है तो डॉक्टर को मिल लेना। हाँ हाँ। इफ यू आर हैविंग पेन इन योर टोज देन गो एंड मीट योर डॉक्टर, एक्सेट्रा हाँ एक्सेट्रा। हाँ। तो ही जस्ट शेयरिंग हिज एक्सपीरियंसेस रियली। ओके। वो मैं है ना, जस्ट देखूंगा, वो तो सर्च फॉर इट। मैं ऐसे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे लिंक भी भेज दूंगा, एनकलोजिंग हाँ, स्पॉन्डिलाइटिस पॉडकास्ट। पॉडकास्ट मैं देखता हूँ वो। यही चीज़ है। डन, ओके। आई एम वेरी हाँ हाँ। हैप्पी यू कॉन्टेक्टेड मी आयुष। और या, कुछ भी हेल्प मैं कर सकता हूँ तो प्लीज लेट मी नो। नहीं नहीं, थैंक्स अलॉट। मैं उसको एक बार रिकमेंड करूँगा ये चीज़, आप जो बोले एक्सरसाइज, एंड उसके बाद मैं आपको फॉलो अप देता हूँ। आई एम डन, श्योर ओके आयुष, या हेल्प थैंक यू होगा डियर। उससे। या, थैंक यू सो मच। थैंक्स, बाय। या, बाय बाय।